Today we'll start our story with graph. Okay. So graph, so understanding graph, you must be knowing the Cartesian system everywhere. Right? This is your? Okay. So basically you have a pair of perpendicular lines. You have one horizontal line and other one vertical line. And the point of intersection of these lines is called origin, right? And you know this is called x-axis. And this is called y-axis. Y-axis. This is the positive x-axis. Negative x-axis, right? Positive y-axis, sorry. Negative y-axis. And positive y-axis. Right? And your 2D plane has been divided in 4 parts. You call this as quadrants 1, 2, 3, 4. Okay, anybody tell me why 1, 2, 3, 4? Why not 1, 2, 3, 4? If I go from here to here, according to the why according to x-axis? See, it's basically a dimension, right? Origin going right is positive, going left is negative, going up is positive, going down is negative. And for angle, anti-clock is positive and clock is negative. Right? अगर आप किसी को देखो, then you have to unscrew the what do you say, screw. Screw को जब आप anti-clock करते हैं तो what it happens? It comes up. So this is your positive z-axis, right? This is what we discussed last time. If I say this is y, this is x, this is your positive z. तो anti-clock में क्या हो रहा है? Where is my finger pointing? Out. तो आपको पता है anti-clock में चीजें बाहर की तरफ आती है. So anti-clock angle is considered to be positive angle and clockwise angle is considered to be negative angle, right? Okay. Now, you know, when you plot any point on this Cartesian system, there are 2 dimensions to it. And we call this x coordinate as abscissa and y coordinate as ordinate. Right? Abscissa and ordinate. And you know, in this axis, the abscissa is changing, but ordinate is fixed, that is 0. We call the equation of this line as and you know, for this line, the abscissa is fixed and the ordinate is changing. So you know the variable is y coordinate. So I can say this is actually nothing but x is equal to 0, right? Now यहाँ पे आपको पता चल गया सारे ऑर्डिनेट 0 हैं, यहाँ पे पता चल गया आपको सारे एब्सिसा 0 है, राइट? ओके. उसके बाद आपको इधर पता है कि दिस कोऑर्डिनेट हैज माय एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ. राइट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? पक्का? ओके. मैं आपको कोई भी पॉइंट अगर आपको बताऊं प्लॉट करने के लिए, फाइव से प्लॉट 3, 5 तो आप कैसे प्लॉट करोगे? You will simply draw this and you will say okay 3 unit this and 5 unit this. So this is basically 3, 5, right? If I ask you to draw -3, 5, you can solve this. If I ask you to plot -3, -5, if I ask you to plot 3, right? So you know basically this is your abscissa. And what is the definition of abscissa? Distance of P, let's say this P, with respect to this distance of P from y-axis. That is called abscissa. And ordinate is distance of P from x-axis. So you understand? X coordinate is actually distance from y-axis and y coordinate is actually distance from x-axis. And you know what does plus and minus signify? तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं.
अच्छा, जब should I have this or everything? Okay. आप लोग नोट मेकिंग में always make sure कि जो आप नोट मेकिंग करते हो तो प्लीज मेक श्योर कि जिस तरीके से क्लास स्टार्ट हुई है ना वो पिक्चर्स बनाते रहे ताकि घर में जब आप ओपन अप करेंगे तो चीज़ें आपको बताओगे कि क्या बातें हुई, राइट? अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी द ट्रैक, अचानक से बहुत चीज़ें आ जाएंगी बोर्ड पे। कीप राइटिंग एवरी टाइम, even if you know, just write it very fast. Okay, this. आप लोग ये जानते हो सब लोग जानते हैं लीनियर पॉलीनोमियल मतलब 3x is equal to ax plus ba होता है ना, राइट? और bx को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? y से, राइट? अच्छा, लेट्स से आपको ड्रॉ करना है y is equal to x. Now since it is a linear polynomial, which means this is going to be a line, right? So y is equal to x graph is going to be a line. Now what you need for drawing a line? 2 points. 2 points are sufficient, right? If I give you 2 points, you can draw the line. So let's say you have to draw y is equal to x. So you know x is equal to 1 पे y क्या होगा? So you know 1 point is, right? If I ask कुछ भी और दूसरा पुट कर दो, let's say -2, y क्या होगा? क्या होगा? -2 comma. So you know how to plot 1 comma 1, and you know how to plot -2 comma 2. ये हुआ ना? So these 2 points are sufficient to draw your line. So this is going to be your line. Y is equal to x line. Understood? So you can draw your y is equal to x line simply by drawing any 2 points. There will be infinite points lying on this line. So what you just need is 2 points. Right. So this becomes your graph of y is equal to x. Okay, one suggestion: when you are drawing the graph in class, now you have become a senior students, you don't have to draw 1, 2, 3, 4. You don't have to plot 1, 2, 3, 4, right? Just the sense of proportion is fine. If I say this is 2, then it has to be 4. ऐसे करके you can. But ये मत करना कि 3 यहाँ पे लिख दो. ठीक है? It's fine. अगर तुम 2 के बाद 3 ऐसे लिख देते हो, there is no problem. है ना? You just have to keep the sense of proportion. Exact रखने की जरूरत नहीं है. We are not interested in the quantity. We are interested in the quality. Okay? So you don't have to put 1, 2, 3, 4 and then 1, 2, 3, 4 and then start making squares to create that famous form. ठीक है? You just have to make a sense of proportion use करके आप कर सकते हो, right? Now let's say you have to draw y is equal to x minus 3. Okay, you have to draw y is equal to let's say x is equal to 1 पे y क्या आएगा और x is equal to 3 पे, so I can say 1 comma minus 2
3, 0, 2 points. 3, 0 would be something like this, and 1, -2 would be something like है ना, तो कुछ ऐसा बना, राइट। ग्राफ क्या बना, कुछ ऐसा, कैसे बना, ये यहाँ पुट कर दो ना, ऐसे करो, x = 0 पुट कर दो, y क्या हो जाएगा, और ये रखो x = 3, तो y क्या होगा, 3, 0 है, 0, -3, ठीक है। So this is basically 3, 0, and this is what you see about these two lines. Both are parallel lines. Both are parallel lines, and actually this line has shifted 3 units right. देखो this line is only shifted 3 units. इसी को आप पैरेलली ड्रॉ करोगे, क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, 3 यूनिट, सारी चीजें 3 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर रही, अंडरस्टूड। तो आपको पता चला x को अगर x - 3 से रिप्लेस करते हो तो आपका ग्राफ 3 यूनिट्स राइट शिफ्ट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स से now I'll put x = -3, तो y क्या हो जाएगा, I'll put x = 0, तो y क्या हो जाएगा, 3, so I can say -3, 0 and 0, 3, right? So now if you draw this graph, it would be something like, so what is happening, these 3 lines are parallel lines, and in this scenario the graph has been shifted right 3 units right, and in this scenario the graph has been shifted 3 units left, right? तो आपको पता चल गया x, तो अगर ये x - a होता तो क्या होता, 3 units right, और ये a units left, right? अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, और कब आगे बढ़े। अच्छा, ये यहाँ पे मैं अगर इसको y = 2x कर दूं क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, बस हल्का सा ये स्टीपर हो जाएगा, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से लिख दूं 2x - 6, 2x - 6 का मतलब क्या हुआ, 2 into मतलब x किससे रिप्लेस हो गया, 3 से, तो 3 यूनिट्स राइट, और इसे मैं लिख दूं 2x + 6 मतलब 3 यूनिट्स, है ना, समझ में आ रहा है। तो x को x - 3 या x - a से क्या होगा, और x को x + a से बदलने में क्या होगा, ग्राफ में पता चल गया। ओके, तो इसका मतलब आप लीनियर पॉलीगॉन में ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड, ओके, क्लियर है। कितने लोग ये चीज पहले देख चुके हैं, mod -7 = 7, mod 3 = 3, mod -half = mod का मतलब क्या होता है, whatever if you put positive value it will give you positive, and if you put negative value then also it will give you positive। तो क्या आप y = mod x का ग्राफ बना सकते हो, आपको इतना तो पता चल गया कि पॉजिटिव जितना भी होगा सेम ग्राफ रहेगा, और जब x नेगेटिव होगा तो क्या आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, कैन आई राइट दिस कि if x is positive then y = x, and if x is negative y = -x, क्योंकि x नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा दो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अंडरस्टूड, कितने लोगों की बात समझ में नहीं आई, ओके, ये 3 एग्जांपल समझ में आया। y = mod x मतलब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो x पॉजिटिव है तो सेम आंसर आ गया,
अगर मैं इसमें 75 डालूँ तो 75 ही आएगा, अगर 80 डालूँ तो 80 आएगा, लेकिन अगर -5 डालोगे तो क्या आएगा? 5। तो -5 को 5 कैसे बनाओगी? माइनस इंटू -5। समझा? जब x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई। और x अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो यू विल लीव इट एज इट इज। क्लियर है ना? तो x पॉजिटिव कहाँ पे है? राइट में, और x नेगेटिव कहाँ है? लेफ्ट में। बात सबको पता है? ओके। तो मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है और तुम्हें ड्रॉ करना है y = mod x। तो तुम्हें ये तो पता चलेगा कि पॉजिटिव वैल्यू पे यही ग्राफ जाएगा, क्योंकि 1 डालोगे 1 आ जाएगा, 3 डालोगे 3 आ जाएगा, 7 डालोगे 7 आ जाएगा, तो इट्स फाइन। लेकिन -1 डालोगे तो क्या आएगा? 1। -2 डालोगे तो क्या आएगा? 2। ऐसा हो जाएगा क्या? ये ग्राफ क्या है? y = -x। ये ग्राफ क्या है? y = x। अंडरस्टूड? इसमें आ गया। तो y = mod x का ग्राफ समझ में आया? y = mod x मतलब क्या हुआ? आपको x जो राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है ना, मतलब नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। जैसा पॉजिटिव के लिए बिहेव कर रहा है वैसा ही नेगेटिव के लिए। देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड सिमेट्रिकल है क्या? होना भी चाहिए था। आप लोगों ने y = x² का ग्राफ बनाया या देखा है? y = x² का ग्राफ देखा है? पैराबोला बनता है, जैसा इधर होता है वैसा ही उधर होता है ना। क्यों वैसा ही होता है? क्योंकि अगर आप उसको 5 डालोगे तो भी 25 देगा और -5 डालोगे तो भी 25 देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता आपका नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव है। क्लियर? तो y = mod x का ग्राफ समझ में आया सबको? ओके। अब हम लोग सीखेंगे how to draw y = x², since it's a quadratic polynomial, है ना? तो quadratic polynomial में linear तो नहीं बन रहा है, so basically it's not a line। तो लाइन जब नहीं बन रहा है तो हम लोग ग्राफ पॉइंट से बना नहीं सकते, so we need some, जैसे आपको सर्कल बनाना था तो what you need? सेंटर एंड रेडियस, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे 2 डिग्री कर्व्स होते हैं, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है ना? तो उन सारों को बनाने के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, राइट। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या क्या चाहिए होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? y = x² पे। तो हम लोग सिर्फ स्क्वायर पे ध्यान देंगे। आप लोग बचपन से स्क्वायर कर रहे हो, सब लोग बचपन से स्क्वायर कर रहे हैं। कभी आपने पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर किया है? क्या होता है? पॉजिटिव। और नेगेटिव को क्या है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, कभी 1 से बड़े नंबर को स्क्वायर किया है? क्या वो नंबर स्क्वायर करने से बड़ा हो जाता है? ओके। और जब वो नंबर 0 से 1 के बीच में होता है तो उसको स्क्वायर करने से क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? छोटा होता है सर। हाँ, बढ़ जाता है सर, इक्वल है, बढ़ जाता है सर। अगर हाफ का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? कौन बड़ा होता है? 1/2 या 1/4? मतलब स्क्वायर करने से क्या हो गया? घट गया। अगर 1/3 हो इसका स्क्वायर क्या होगा? कौन बड़ा है? अच्छा, 0.9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 0.8। कौन बड़ा है? 0.99 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 0.9801। कौन बड़ा है? 0.97 का स्क्वायर करोगे तो 0.9409। कौन बड़ा है? अच्छा, मैं इतना जल्दी स्क्वायर कैसे कर रहा हूँ सबको पता है ना? कितने लोगों को नहीं पता है कि मैं इतना जल्दी स्क्वायर कैसे कर रहा हूँ? ओके, चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके, सो बेसिकली यू सी 0 से 1 के बीच में हम कोई नंबर चूज कर रहे हैं, उसको स्क्वायर करने से क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। और 1 से जितना भी नंबर ऊपर चूज कर रहे हैं उसको स्क्वायर करने से, तो ये फर्क दिख रहा है? अच्छा, 1 को कभी स्क्वायर किया है? और 0 को स्क्वायर किया है? 0। तो मतलब 0 और 1 को स्क्वायर करने से कोई मूवमेंट नहीं है। He is sitting where he is sitting।
राइट, ये बात समझ में आता है? ओके, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम y = x² का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे। Should I have the whole board? Okay. So why did I did this? बता सकते हैं? When I was rubbing it horizontally, तो इसके dust इधर की तरफ आ रहे थे. So it's more scientific to feel this way. Okay. हर चीज का scientific dust पे होना चाहिए ना. When you are even अभी तो हमारे पास markers है, when chalk वाले boards होते हैं तो उसके अंदर perfect है. It will never enter your nose. अगर तुम ऐसे dust को clean down कर दो. Okay. Now, अब देखो y = x हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट? दिस इज योर ग्राफ, है ना? y = x से y = mod x भी हम लोग आराम से सीख चुके हैं। क्या होता है? अब यहीं पे ऑपरेशन करेंगे फॉर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही रहता है, राइट? अच्छा, ये तुम्हारा y = 0 है, ये पॉइंट क्या है? y = 0, और ये लाइन है तुम्हारा y = 1, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? y = 1, ठीक है? अब तुम्हें ये पता चल गया कि 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये तो यही है ग्राफ में, राइट? ये कहीं नहीं मूव करेगा। ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट्स हो गया या धनुष का एंड पॉइंट्स, क्लियर? अच्छा, हाफ को स्क्वायर करोगी तो क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आया। 0.9 को स्क्वायर करोगी तो 0.81, 0.1 को स्क्वायर करोगी तो 0.01। सब क्या हो रहा है? नीचे की तरफ पुल हो रहा है, राइट? नीचे की तरफ पुल हो रहा है, लेकिन कौन पुल नहीं हो रहा है? तो इट वुड बी लाइक अ बैंड पुलिंग इट डाउन, यू आर पुलिंग इट डाउन, राइट? तो ये और ये सेम रह जाएगा, तो धनुष जैसा शेप बनेगा। इट वुड समथिंग लाइक, इट वुड लुक लाइक समथिंग, अंडरस्टूड? एकदम ऐसे ही हुआ ना, धनुष में जैसे नीचे होता है, तो सब नीचे आ गए, क्लियर? द सेम स्टोरी इज हियर, द सेम स्टोरी इज हियर। जैसा राइट होगा वैसा ही लेफ्ट होगा, क्लियर? अच्छा, ये तो कहानी थी 0 से 1 की। अब 1 से 2 क्या हो रहा है? 2 is becoming 4, 3 is becoming 9, 4 is becoming 16। फिर वैसे ही जैसा राइट होगा वैसे ही लेफ्ट होगा, तो it would be something like, so this red line is your graph and this shape is called parabola। तो आपकी लाइफ में पैराबोला ऐसे आता है, राइट? हम बाद में सीखेंगे पैराबोला होता क्या है ना? इस शेप को जो यू शेप है, जो सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक है? whatever you see on the right, you see the same thing on the left. This is the symmetry of parabola U shape. Okay, clear? So this is the graph of y is equal to x square, है ना? तो this is how हमने कहाँ से सीखा? y is equal to x से y is equal to mod x, y is equal to mod x से y is equal to x square. Is it difficult? नहीं, सबको समझ में आ रहा है? Okay, ग्राफ मुश्किल नहीं है। The one who knows the graph will have a better grip in mathematics because picture is better than 1,000 words. Okay, so it's very apt for mathematics. जो mathematics के students हैं, they do exception. Even when you are medical students, if you go for physics and chemistry, you will see lots of graphs. So you must understand the interpretation of the graphs. So you need mathematical skills to understand the graph. Okay. Sure of it? Y is equal to x and y is equal to x का समझ में आया?
Okay, I won't draw y is equal to x. I just draw this. Now, I'll come back to quadratic. I'll just tell you, give you an idea how to draw y is equal to x a, y is equal to x cube, right? इसका ग्राफ कितने लोगों ने देखा है? ऐसा होता है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा होता है ना? अब इस ऐसा शेप क्यों आ रहा है ये हम डिस्कवर करेंगे। क्यों? जस्ट बाय द नॉलेज ऑफ आवर नंबर्स एंड क्यूब्स। एवरीबॉडी नो व्हाट आर क्यूब्स। Multiplying the number itself 3 times. When you know, अच्छा, क्यूब्स का नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे वो स्टोरी नहीं है मॉड वाली, राइट जैसा है वैसा लेफ्ट, राइट। अच्छा, अब बताओ तुम मुझे 0 का क्यूब क्या होता है? 0। 1 का क्यूब 1 और -1 का क्यूब -1। तो मतलब अब समझ के कौन से बंदे नहीं मिलेंगे? 0, y is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to दुनिया इधर से उधर हो जाए वो वहीं रहेंगे, राइट। अब आ जाओ 0 से 1 के बीच में, सेलेक्ट एनी नंबर, हाफ का क्यूब क्या होता है? बढ़ा या घटा? और कोई नंबर सेलेक्ट करो। 0.9 कौन होगा? 0.1 मतलब और ज्यादा तेजी से घट जा रहा है, बढ़ा तो नहीं रहा है। अच्छा, ये स्टोरी थी 0 to 1 to infinity की क्या स्टोरी है? 2 8 3 7 5 25। तो राइट साइड ऑफ द ग्राफ मुझे पता चल गया। राइट साइड ऑफ द ग्राफ कैसा हो गया? राइट साइड ऑफ द ग्राफ इज समथिंग लाइक so y is equal to 0 is this, y is equal to 1 is this, and y is equal to -1 is this, right? These are my 3 fixed points. 0 से 1 क्या हुआ? पुल डाउन। ज्यादा किसके पुल डाउन हुआ? लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन क्वालिटी। सो इट विल बी पुल लाइक पुल समथिंग लाइक दिस, राइट? एंड दिस विल बी, क्योंकि बढ़ गया, 2 became 8, 3 became 27, 5 became 78, है ना? तो सारा चीज तो ये कैसा हुआ? It would something like, it will go something like this. Clear? Okay. Now coming to the negative one. Observe -1 to 0. -1 to 0 observe कर रहे हो? तो I'll just put -half, -1/8, -0.9। अच्छा, ये तुम्हारा x है, इसको क्यूब करने से ये होगा आंसर, राइट? ये x है, ये क्यूब करने से ये आंसर आ रहा है। इससे बड़ा कौन है? -1/8 या 2? 1/8 मतलब 8 या 2? 8 सारे लोग बोल रहे हैं 8 बड़ा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा होता है। 8 बड़ा है, -1/2 बड़ा है। ओके, -1/8 बड़ा है। Just tell me how many of you say that left is bigger than right, and how many of you say right is bigger than left? So class 50-50 divide हो गई है almost। मतलब इतना मुश्किल है? मैं क्लास 8 के बच्चे को बुलाऊं, वो बता देगा मुझे। राइट, अच्छा अभी कौन बड़ा है? राइट या लेफ्ट बड़ा है? माइनस लगते ही कौन बड़ा हो जाएगा? समझा ना? प्रतीक पकड़ गई सब की? समझा है ना? ऑब्वियसली 5 करोड़ का लॉस कि 1 करोड़ का लॉस, कौन बड़ा है? 1 करोड़ का लॉस ना, तो फायदे में कौन है? 1 करोड़ का लॉस ना। 1 करोड़ का ब्लैक मनी, 5 करोड़ का ब्लैक मनी, कौन अच्छे पोजीशन पे है? 1 करोड़ का ब्लैक मनी ना।
ओके, सो आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ कहानी बढ़ेगी, उठेगी, राइट? सो इट विल बी समथिंग लाइक, अंडरस्टूड? ये क्या हुआ? पुल अप, है ना? ऊपर की तरफ जा रहा है ना सर? -1/2 -1/8 बन रहा है, -0.9 -0.729 बन रहा है, -0.1 -0.001 बन रहा है, क्लियर? Now down to this, y to infinity, sorry, -infinity to -1. अब बताओ, लेफ्ट और राइट इज बिगर, लेफ्ट इज बिगर, तो मतलब कहानी घट गई है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ, so this is your y is equal to x cube. This is the graph of y is equal to x cube. Understood? इसी कॉन्सेप्ट से we can draw x to the power any even from y is equal to x square, बिल्कुल वैसा ही शेप बनेगा, x to the power 4, x to the power 6, और x cube, x to the power 5, x to the power 7, x to the power 9 would always be something like this with a little, कोई ज्यादा खींचेगा कोई कम खींचेगा, right? But quality would be same, the shape would be same. Clear? कोई जल्दी छतर फाड़ देगा, कोई बाद में छतर फाड़ेगा, राइट? ये होगा, और कुछ नहीं होगा. Now आप लोग y is equal to root x का ग्राफ कितने लोग जानते हैं? y is equal to root x. अच्छा, रूट को तो जानते हैं ना, स्क्वायर रूट को जानते हैं, ठीक है? बिल्कुल y is equal to x से y is equal to root x बना सकते हैं कितने लोग? समझ गए कि y is equal to root x बहुत आराम से बनाया सकता है, समझ गए? कितने लोग? Raise your hand. Only one. y is equal to root x. अब हम लोग देखेंगे y is equal to x से y is equal to root x कैसे बनाते हैं, फिर we'll come back. उसके बाद क्यूब रूट आप समझ सकते हैं, राइट? आई वोंट गो टू फर्दर, लेकिन जस्ट एक लाइट आइडिया दे रहा हूं रूट x का, और ध्यान रखोगे जो अच्छे बच्चे दे हैव ऑलरेडी गॉट द आइडिया, है ना, कि कैसे करना है. नाउ जस्ट लेट मी फिनिश दिस मतलब रूट x वाली कहानी, एंड देन आई विल कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट. हमें क्या बनाना है? y is equal to रूट x. सब लोग बचपन से रूट निकालना जानते हैं, है ना? रूट निकालना तो सब जानते हैं, रफ आइडिया तो है ना रूट निकालने का. परफेक्ट स्क्वायर का तो रूट निकाल ही लेते हो, नॉन परफेक्ट का अप्रॉक्स रूट तो पता ही है. दिस इज y is equal to x लाइन, जो हमारा बेस ग्राफ है, राइट? अच्छा, -25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? Sir, 5 When I'm talking on real numbers, don't say iota, okay? So -25 का स्क्वायर रूट आप रियल वैल्यूज पे नहीं निकाल सकते, राइट? -1 का भी नहीं निकाल सकते हैं, निगेटिव लगते ही आप निकाल ही नहीं सकते स्क्वायर रूट, राइट? तो आपको स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का निकालना होगा, तो मतलब ये ग्राफ तो होगा ही नहीं, है ना? Yes sir. This graph won't be your part, क्योंकि नेगेटिव डालते ही तुम्हारा एरर, कैलकुलेटर में डालोगे एरर आ जाएगा, राइट? तो होगा ही नहीं, लेफ्ट साइड कोई ग्राफ ही नहीं होगा, क्योंकि तुम डालोगे -5 कुछ नहीं आया, एरर, -49 एरर, कोई ऐसा रियल वैल्यू है ही नहीं जिसका स्क्वायर -49 हो, क्योंकि रियल नंबर्स के सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं? है ना? अच्छा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? फिर तो पता चल गया होगा. 0 और 1 की स्पेशलिटी समझ में आ रही होगी, ये कहीं नहीं लिख सकते, है ना? 0 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट वही रहेगा, बैठा रहेगा. स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, राइट? अच्छा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2. वेरी गुड. 0.81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0.01 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0.1. क्या हो रहा है स्क्वायर रूट लेने से? 0 to 1, अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सो ये आइडिया लग गया कि 0 से 1 मेरा कोई भी बंदा होगा वो बढ़ेगा. फिक्स पॉइंट्स क्या है? 0 और 1. अच्छा, 1 to infinity अब इसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं. 4 का स्क्वायर रूट
आंसर 2 सर। 2 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4। सो बेसिकली क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आइडिया समझ में आ गया? सो कैन आई से ये ग्राफ ऐसे उठेगा, 0 से 1 बढ़ेगा and 1 से ओके। सो दिस इज योर ग्राफ, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग लेकिन एट अ स्लोअर रेट। रूट 9 फिर रूट 16 रूट 25 सब बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत देर पे बढ़ रहा है ना। स्क्वायर कैसे बढ़ रहा था, ऐसे स्क्वायर ये था ग्राफ, y इक्वल स्क्वायर ऐसा था ना, इधर वाला अगर हटा दूं ऐसा ही था, तो दोनों मिरर इमेज है ना एक दूसरे का, y इक्वल टू x लाइन के हिसाब से। ओके, और क्लियर ग्राफ की कहानी इतनी काफी हुई। नाउ वी विल कम टू क्वाड्रेटिक। सो एवरीबॉडी एंजॉयड ग्राफ? आसान था? ठीक है, गुड। लव इट? यस सर। सो घर पे आप जाके एक बार क्यूब रूट से देखिएगा। क्यूब रूट नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है। तो फिर से वैसे ही क्यूब y इक्वल टू x क्यूब जैसा ही रहेगा, उसका मिरर इमेज हो जाएगा, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, घर पे जाके देखिएगा क्या हो रहा है। -1 से 0, माइनस इन्फिनिटी से -1, 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। उसके बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि 1/4, 1/6, 1/8 एकदम एक जैसा होगा, और 1/3, 1/5, 1/7 एक जैसा होगा। तो x पे आप जितना भी पावर दे दो, यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना। फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर्स का। ऑब्वियसली x टू द पावर पाई का नहीं जानते हैं, लेकिन x टू द पावर 22/7 का जानते हैं, राइट। पाई और 22 से एक नहीं है, पता है ना। हाँ बोलिए, किसका? अच्छा, जल्दी जल्दी स्क्वायर कैसे? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कौन पूछ रहा है? एक 97 का स्क्वायर प्लस 3 का क्या होता है? -3 का क्या हुआ? 97 का स्क्वायर प्लस 3 का -3 का 89 प्लस 11 का -11 11 स्क्वायर समझा? क्या कर रहा हूं मैं? a plus b into a minus b plus b square, that is a square। a square ही तो निकालना है, लेकिन मैं a plus b और a minus b चालाकी से कर रहा हूँ। क्यों? मैं चाह रहा हूँ या तो ये एक अच्छा सा प्यारा सा नंबर बन जाए जिससे मैं मल्टीप्लाई कर सकूँ। ऑब्वियसली 97 को 97 से या 100 - 3 का होल स्क्वायर करने से बेवकूफी, जैसे होगा 973 का स्क्वायर। ठीक है, डरावना लग रहा है देखने से, आंसर हो जाएगा 946,729। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने प्लस 27 कर दिया, माइनस 27 कर दिया, तो ये बन गया 946, ये बन गया 1000 और 27 का स्क्वायर मुझे पता है। ठीक है, तो पहले आप 0 से 10 तक का स्क्वायर सीखते हैं, फिर आप 0 से 100 तक का सीखते हैं, फिर आप 3 डिजिट में ट्राई करने लगते हैं, फिर 3 डिजिट में मास्टरी पा जाते हैं तो आप 4th डिजिट में घुसते हैं। So it's like a mental exercise. जब तुम ट्रैफिक में फंसे हो, you can keep doing that. It sharpens you, that's it. Exercise कर रहे हो, you can keep doing it. Okay. Now, this idea could have struck you when you were in class 3-4 also. This idea could have easily struck you. कैसे? You don't need to know a plus b into a minus b. अगर तुम 10 को और सॉल्व करते, अगर तुम अपने टेबल को गौर से देखते, तो बचपन में तुम्हें कटवाया होता छंटी मार के, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 11 9 12 8 13 7
14 6 क्या हो रहा है, मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ उतना स्क्वायर आगे हो जा रहा हूँ। ये आइडिया था, ये तो मैंने को भी हिट कर सकता था, राइट? आपका तो कौन मैथ्स को पसंद नहीं करता है? पसंद करने वाला एक चीज है यार, इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, रब कर दूं? Okay, what is quadratic polynomial? First tell me. Power is ठीक है, this is your polynomial ax square plus bx plus c. Now पहले आप इक्वेशन का मतलब समझो. When I say solution of equation, what does it mean? zero value. Should be equal to LHS should be equal to RHS. That is algebraic. I don't think so कि कहेंगे तो उसको मुझे समझ ही नहीं आ रहा. तुम कभी 1 डालती हो 0 हो जाता है, कभी 3 डालती हो 0 हो जाता है. मेरे को कैसे दिमाग में आएगा कि क्या डालना है? सर अगर वो वैल्यू डालेंगे तो जीरो वैल्यू है. There are infinite values. तो बेसिकली हो क्या रहा है? तो ये तो आपने बहुत अच्छा बोला कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन में और दूसरी तरफ I totally agree with this. Yes, there is a left hand side and there is right hand side. I have no problem. But ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये कोई एक्सप्रेशन है, और ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये भी कोई एक्सप्रेशन है, राइट? ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन मुझे कर्व देता है, और ये एक्सप्रेशन भी मुझे कर्व देता है, और ये दोनों कर्व जहां पे मिलते हैं ना, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अंडरस्टैंड द मीनिंग? आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, तो आप दो इक्वेशंस लिखते थे, y is equal to ax plus b, y is equal to a2x plus b2. तो एक लाइन होता था और दूसरा लाइन होता था, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप कहते थे सॉल्यूशन. जब दोनों लाइन पैरेलल बन जाते थे तो आप कहते थे नो सॉल्यूशन. जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जाता था तो आप बोलते थे इनफिनाइट सॉल्यूशन. समझ रहे हो आइडिया क्या था? सब ग्राफ से था, लेकिन तुम लोग से अलजेब्रा कराया जाता था, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो. बट इट वाज बेसिकली एन इंटरप्रिटेशन कि आपको दो लाइन बनाना था जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है. अच्छा, अब कहानी लेकिन हमेशा तो लाइन नहीं रहेगा. कर्व लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है. क्लियर? शुड आई रिपीट? तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सबको समझ में आता है, वैल्यू वैल्यू पुट करना नहीं. ठीक है? क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब? कि लेफ्ट हैंड साइड में एक कर्व है, राइट हैंड साइड में एक कर्व है, you just have to find the point of intersection. Okay. अगर मैं बोलूं x square is equal to 3x, x square is equal to 5x plus 6. अगर मैं ये बोलता x square is equal to 5x plus 6. You have a left hand side, you have a right hand side. What this left hand side represent? And what this represent? So what is the solution of the equation? If this line is cutting at 2 points, the solution? हाँ, this is quadratic equation. तो what is solution? एक तरफ आपका पैराबोला है, दूसरी तरफ आपका लाइन है, और उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. लेट्स से ऐसा भी तो हो सकता है, वो लाइन टैंजेंट हो पैराबोला का, तो वन सॉल्यूशन या टू इक्वल सॉल्यूशन, और ये भी हो सकता है. समझ रहे हो क्या रहा है? ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू सी कि हो क्या रहा है. ओके, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया.
बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये पैराबोला ही है। हम देखेंगे ये पैराबोला क्यों बनता है। ये पैराबोला है और ये क्या है? लाइन है। कौन सा लाइन? एक्स एक्सिस, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो हम ये देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, जिसको आप अल्फा और बीटा कहते हो, और फिर अल्फा और बीटा का फॉर्मूला निकालते हो और फिर आप उसको सॉल्व करते हो। राइट? अंडरस्टूड? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट डज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन? लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड व्हाट डज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीन, है ना? आप लोगों ने क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। व्हाट वाज फैक्टर थ्योरम? नहीं, जस्ट टेल मी व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में फैक्टर थ्योरम। What is value of a polynomial? If you put value of x, if you put x, you'll get value of y. That is called value of polynomial, right? If you put certain value of x, you'll get 0. You got zeros of a polynomial. यही था ना? And अगर आपको कहा जाए कि px is let's say some expression, and if you put 5, the expression turns out to be, so you can say this expression is x minus 5 into something. That was factor theorem, right? So when I say ax square plus bx plus c is equal to 0, it means, let's say if I put alpha in the equation, it is turning out to be, if beta, if I am putting beta, it is turning out to be 0. So can I say ax square plus bx plus c is actually equal to a into x minus alpha into x minus beta is equal to 0? Can I say this by factor theorem? है ना? तो ये हमें पता चल गया कि yes, they are equal. अब क्या हो रहा है? ax square plus bx plus c is equal to a into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. ये होता है ना? तो क्या पढ़ रहा था आपने? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस a इंटू अल्फा बीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि मैं तेज हूँ? ठीक है, ओके। तेज तो नहीं जा रहा ना? Can I say this is equal to this? So can I say b is equal to minus a into alpha plus beta? Can I say alpha plus beta is? And can I say alpha into beta is? समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आता है और सम ऑफ रूट कैसे आता है? ये फॉर्मूला पढ़ा था। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। सब मेरे साथ है? ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करने को दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, कैसे सॉल्व करते हो इसे? तुम इसे ऐड करते हो और बोलते हो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2, राइट? और सब्ट्रैक्ट करते हो, बोलते हो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2, ये बोलते हो, ऐसे ही सॉल्व करते हो, राइट? और अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और बोलूं xy is equal to 6, आप कैसे सॉल्व करोगे? तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं सीखा है? अभी तो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सीखा है। लीनियर इक्वेशन तो ना, यहां से जन्म होगा ना क्वाड्रेटिक का।
अब ना पैदा होगा, तो अभी तक तो तुमने नहीं सीखा है। तो हाउ टू हैंडल दिस? आपने बचपन में ये पढ़ा था, और आपने बचपन में ये भी पढ़ा था, और आप जानते हो दोनों के बीच में बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। So you can say a minus b का whole square is actually a plus b का whole square minus 4ab. So you can say, okay, I don't know x minus 5, but I can create x minus 5. How can I create x minus 5? I can simply write 5 square minus 4 into 6 का under root. So you can say this is basically 1, and now you can solve. Right? ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? कोई मिस कर गया मुझे? नहीं? पक्का? मनार? समझ रहा है? अरे x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6। ठीक है? अब सुनेगा फिर? नहीं? रुक जाओ? चलो रुकते हैं। तो अब स्टोरी कुछ ऐसी हो गई कि अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, एंड आई नो अल्फा इनटू बीटा। नाउ माय टारगेट इज टू गेट अल्फा माइनस बीटा, राइट? सो आई कैन डायरेक्टली से दैट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, which I can say minus b by a का whole square minus 4c by a, which I can directly say that b square over a square minus 4c over a. What is the denominator? एक का a square है, एक का a, कैसे solve करें? LCM लेते। What should be the LCM? So what can I say about alpha minus beta? Under root over a. I'll consider my alpha greater than beta, so I can take positive value, है ना? Obviously alpha beta में कोई तो बड़ा होगा ना. Let's say alpha is बड़ा. So alpha minus beta would be equal to under root b square minus 4ac upon a. Clear? Understood? So I can say alpha minus beta is b square minus 4ac over a. सब मेरे साथ हैं? ठीक है? So can I say this? If I add this to, I'll get alpha is equal to minus b plus under root b square minus 4ac over 2a, है ना? 2 alpha इधर था तो इधर आ गया। Clear? And can I say that beta will be minus b आ गया? यही तो है बस, है ना? तो अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अच्छा, आप x प्लस वाई अगर 5 है और x माइनस वाई अगर 3 है तो कैसे आप सॉल्व करते हैं इसको? आप जानती हैं वो ऐड करने से y इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आप कहती हैं 2x इज इक्वल टू 8, तो आप कहती हैं x इज इक्वल टू 4, राइट? आप जानती हैं अब मैं x को एलिमिनेट कर चुकी हूं, y को एलिमिनेट करना तो क्या करोगी? मतलब x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगी? इसको सब्ट्रैक्ट करोगी, तो यू विल गेट 2y इज इक्वल टू 2, यू विल गेट y इक्वल टू 2।
तो मुझे चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस ले लूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो आई गेट 2 अल्फा, बीटा बीटा कैंसिल 2 अल्फा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे ये होगा 2 अल्फा, ऐड करने से तो अल्फा क्या होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा 2 बीटा और आई विल गेट दिस माइनस के साथ, तो इसको क्या करोगे, समझना है? ओके, एवरीवन विद मी, गुड। So you know alpha beta, you know sum of roots, you know product of roots, and you know exactly what alpha is and what beta is, and you understand minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। अब ये जो under root b square minus 4ac है, ये थोड़ा सा चमत्कारी बनना है ना? इसे रख दो, ये इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है। ये क्या डिस्क्रिमिनेट करता है वो हम सीखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ओके, तुम लोग सब याद कर लेते चीजों ना? नहीं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, एक नंबर होता है। बी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, 4ac can be positive, can be negative depending on the sign of a and c, but basically it's a difference. It can be total positive also if a and c are opposite sign, then it will turn out to be positive. So basically a number है. Now this number can be positive, can be negative, can be equal to 0. So ये नंबर जब पॉजिटिव होता है, एक केस में 0 होगा, एक केस में नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा, ये दो वैल्यूज दे देगा, तो मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज, मतलब अल्फा और बीटा का दो डिफरेंट रूट्स आ जाएगा। इसका मतलब है अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये मतलब हुआ, राइट? जैसे ही 0 हो गया, माइनस बी प्लस 0 अपॉन दिस माइनस बी माइनस 0, मतलब दोनों सेम, अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, रियल एंड इक्वल, राइट? अच्छा, द मोमेंट इट बिकम्स नेगेटिव, एरर, वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, राइट? सो वी कॉल इट नो रियल रूट्स, नो, इसको स्टार मार्क्स करके लिख दीजिएगा। इफ no real roots, since a b c are positive real numbers, just write roots are complex conjugates, roots are, ये अभी आप नहीं पढ़िएगा, जस्ट नोट करके रखिए, जैसे आप याद रखती है नेचर ऑफ रूट्स, जस्ट याद रखिए, ठीक है? ये इसको बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जस्ट पुट इट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आप लोगों ने कॉन्जुगेट नंबर्स पढ़ा है पहले? पढ़ा है, आपने उसका नाम बस नहीं रखा था। ये रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे? ये रैशनल नंबर से 2 + √3 को किससे मल्टीप्लाई करते थे? 2 - √3 से, ताकि वो रैशनलाइज हो जाए। 2 + √3 और 2 - √3 कॉन्जुगेट इरैशनल नंबर्स हैं। कॉन्जुगेट मतलब दो चीज फिट इन करती है परफेक्टली। इरैशनल नंबर क्या होता है? पागल, दो पागल लोग रूम में डाल दो, या तो रूम की कंडीशन बड़ी पागलपनी वाली हो जाएगी, राइट, या परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ, है ना? जब वो दो पागल परफेक्ट कर देंगे उस रूम को, तो वो दोनों हैं पार्टनर्स, दे आर कॉन्जुगेट्स, जो कि 2 + √3 और 2 - √3 है। अगर उन दोनों को ऐड करो तो 4 आता है, मतलब रैशनल, और जब 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है? 1, दैट इज अगेन रैशनल। तो मतलब दो इरैशनल नंबर्स जब ऐड एंड मल्टीप्लाई दोनों में वो रैशनल दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों इरैशनल नंबर्स क्या हैं? कॉन्जुगेट, दे आर द सोलमेट्स। उसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब ऐड होके रियल नंबर्स दे दे और जब प्रोडक्ट होके रियल नंबर्स दे दे, तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं? कॉन्जुगेट। क्योंकि देखिए सम ऑफ रूट्स तो अभी भी -b/a है ना, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट तो c/a है, तो a b/a और c/a दोनों तो रियल नंबर है,
रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिनको ये बात समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, उनको नहीं सुनना था, ठीक है। अभी से आप कर दो। ओके ना, इसको डिस्क्रिमिनेट क्यों कह रहे हैं यार, अभी भी समझ में नहीं आया मुझे। नेचर ऑफ रूट्स तो हमें समझ में नहीं आता है ना। रूट्स का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो अब अभी तो हमने y x² का ग्राफ बनाना सीखा था, लेकिन हमेशा कभी y x² आता नहीं है। ग्राफ तो बनाने को आता है y ax² + bx + c का, है ना, इसका ग्राफ बनाने को आता है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें वो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला स्टेप्स लिखो, फिर उसके बाद हम इस स्टेप्स पर डिस्कस करेंगे। स्टेप्स, ठीक है। स्टेप 1, लुक फॉर द साइन ऑफ ए। ये क्या है? ए एक नंबर है, जीरो नहीं हो सकता है। जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा, या तो पॉजिटिव होगा या अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला बनेगा ऐसा, और अगर नेगेटिव है तो पैराबोला बनेगा ऐसा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको पेंसिल और स्केल नहीं यूज करना है, सिंपल ए को देखना है। ए को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पैरा यू शेप है या इन्वर्टेड यू शेप है। क्लियर? दूसरा, कैलकुलेट d which is equal to b² minus, now 3 cases, d is positive, 0 negative, right? तो मान लो ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, x एक्सिस है। जब d पॉजिटिव होगा तो आपका पैराबोला ऐसा होगा, x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करना होगा। d is equal to 0 पे तो d नेगेटिव पे ये कहानी, d 0 पे ये कहानी, d पॉजिटिव पे। लेकिन ये कहानी तो a पॉजिटिव के लिए है, a नेगेटिव के लिए कहानी होगी। सेम स्टोरी, बस d पॉजिटिव के लिए ऐसे कट करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ चुका है। d is equal to 0 को टच करेगा और d नेगेटिव पे। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो आपको दोनों स्टेप समझ में आ गए। तो अभी तक आपको पैराबोला ड्रॉ नहीं किया है, आपने अब पैराबोला समझ लिया है कि कहां पे है, कैसा है, किस शक्ल का पैराबोला है ना। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में बोला था कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए व्हाट टू थिंग्स यू नीड? सेंटर रेडियस। लाइन को ड्रॉ करने के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स। पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए यू नीड एक्सिस। एक्सिस मतलब जहां से वो सिमेट्रिकल होता है। दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, राइट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेट क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेट कर दिया तीनों को, तीनों पैराबोला को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। एक्सिस समझ में आ गया क्या होता है? दूसरी चीज होती है पैराबोला की जो इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करने के लिए, वो होती है वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स? दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स। So what is vertex? Point of intersection of parabola and axis. Point of intersection of parabola and axis is called vertex. तो आपको दो चीज चाहिए होते हैं, एक्सिस एंड वर्टेक्स। तो सबसे पहले आप अब ड्रॉ करते हो, ड्रॉ एक्स एक्सिस, do not draw y. Why do not draw y axis? देखो, जैसे तुम y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हो ना, तुमने अपना ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पॉजिटिव के लिए यहाँ होना है, नेगेटिव के लिए यहाँ होना है, राइट। और अगर ये नहीं किया तो तुम इन्हीं में बाद में एडजस्ट कर सकते हो कर y को। So always draw x axis, do not draw. Now the question is how to draw the axis of parabola.
आप याद करो, आपने सम ऑफ रूट्स निकाल रखा है, राइट? लेट्स से दिस इज द केस। इफ आई कॉल दिस इज अल्फा कॉमा 0, राइट? दिस वुड बी बीटा कॉमा 0। दिस इज योर एक्सिस, राइट? सो जो राइट है वैसा लेफ्ट है, तो ये पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट। सो आई कैन से दिस इज एक्चुअली इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमा 0। What is alpha plus beta? Minus b by a. So can I say this is actually equal to x is equal to minus b by 2a? तो आपको पता चल गया how to draw your axis. क्या होगा axis? Fourth step. Draw axis of parabola. What is the equation of axis? X is equal to minus b by 2a. आपको b भी पता है, a भी पता है. So you have simply drawn x is equal to something जो ऐसा होगा, y axis के पैरेलल। लेकिन y axis हमने बनाया नहीं है, तो बस x axis के परपेंडिकुलर। क्लियर? आप माइनस b by 2 स्पॉट कर सकते हैं, है ना? x is equal to -5 कोई भी ड्रॉ कर सकता है, x is equal to 5 भी ड्रॉ कर सकता है। It's just a line parallel to y axis। क्लियर? अब क्या है? अब मेरा चैलेंजिंग पार्ट है, the vertex। इधर ही देखो, यही है ना वर्टेक्स तुम्हारा? वर्टेक्स का एब्सिसा क्या है? माइनस b by 2a है ना? ये एब्सिसा सारा इसी सेम है ना, कांस्टेंट है। दैट इज इक्वल टू, तो वही वैल्यू फीड करनी होगी टू गेट द माई वैल्यू। आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, सो आई जस्ट हैव टू फीड माइनस b by 2a, तो क्या हो जाएगा? What I am teaching today right now is very important for class 11th also. ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ताकत लगाना। Even medical students graphs are important, so आप बस देखो क्या हो रहा है, right? Even आजकल in it hasn't started in India, but in US and all, students who are taking medicine, they have a strong background on mathematics also, and those who they are coming up with this combination are exceptionally good in research areas, right? So ऐसा नहीं है कि मैथ्स को टोटल अवॉइड कर देना है। इवन व्हेन यू गो फॉर बिकमिंग अ सर्जन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन प्रिसीजन, राइट? मैथमेटिकल वर्ल्ड और मेडिसिन वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा फ्यूजन है, तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हें मैथ्स नहीं करना है। इफ यू वांट टू एक्सेल, यू मस्ट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। इवन फॉर कॉम्पिटिशन, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिक्स इज द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड, बिकॉज बायोलॉजी क्या है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, यू हैव टू रीड एज मच एज यू कैन। तो ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ लेते हैं। Analytical mind is where you are judged. So physics becomes the challenging part. So you should understand, try to understand graph. अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी पुश करो. There is nothing जो नहीं समझ में आएगा, right? Now if you solve this, आराम से solve, देखो देखने में खतरनाक लग रहा है, end result is very easy. किसी को पता है end result क्या है? किसी को पता है end result क्या है? ये हो गया? Can I cut this off? So what you got? B square by 4a minus B square by 2a plus c. What will be the LCM? 4a. Good. B square minus 2b square plus 4ac. है ना? So I can say minus b square plus 4ac. इस एक्सप्रेशन को देखा है पहले? ये डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव है, माइनस बी बाय ना, ये है देखो ऐसे, यही तो है। सो और डी आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ए ऑलरेडी दे रखा है, कुछ मेहनत करना ही नहीं है। प्लॉट डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, जो कि एक पॉइंट है एब्सिसा, माइनस डी बाई जो आपका ऑर्डिनेट है। आपने प्लॉट कर दिया, आपने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो अब क्या करना है? आपको तो मिल गई सारी चीजें, तो क्या करना है? अगर मान लो ये तुमने एक्स एक्सिस है, राइट, और तुमने ये ड्रॉ कर दिया और तुमने ये पॉइंट निकाल दिया, दिस इज योर वर्टेक्स, और तुम्हें पता है ए पॉजिटिव है, तुम्हें पता है ए नेगेटिव है,
समझ रहे हो ना? तुम्हें बस ड्रॉ कर देना है। So you have plotted vertex, you have plotted axis, draw your parabola. अच्छा, अब जैसे तुमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया है, क्या तुम बता सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्स एक्सिस? सिंपल, अल्फा एंड बीटा. If they ask you what is the point of intersection of parabola and y axis, इसका मतलब क्या है? Abscissa 0. Put कर दो 0 यहाँ पे. क्या बचा? C 0, C. C. So you know the graph. You know how to draw it. Clear? So this is basically quadratic equation. Understand? प्रकाश समझ में आ रहा है कि घबराहट बहुत ज्यादा हो गया? सर के ऊपर से क्या कुछ क्या? सब साफ है ना? इसको मैक्सिमाइज करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, एस्टिमेट करना है ना? ये नहीं कि बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ा जाता है, कम चीज पढ़ा जाता है, लेकिन उस कम चीज को स्ट्रॉन्ग से पढ़ा जाता है. So almost quadratic equation is over. जो भी तुम हफ्ता 10 दिन लगाते थे quadratic equation में, it was just a 30-minute story. और अगर बहुत तेजी से करें तो 15 story, है ना? अल्फा प्लस बीटा तो तुरंत निकल गया था, अल्फा बीटा भी तुरंत निकल गया था. अब क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन सॉल्व क्यों करते हो? ताकि तुम्हें ये सब चीजें रिजल्ट से कॉन्फिडेंस आए, बस और कुछ नहीं. ठीक है? Clear about this? ना? So ये जो steps है ना, you never forget the steps of polynomial till 11th to engineering students, right? Even medical students, if you are understanding, it's good, not bad. कल कौन सी क्लास हुई थी? पीसीबी ना, इसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी. Clear this? So you are learning new things in physics and chemistry. Grasping it? Okay, टेस्ट इसी पे होगा जो 3-4 दिन आप लोग जो अच्छे से ट्राई करेगा, राइट? किसी को एक्स्ट्रा डाउट लेना है, जल्दी आ जाओ या थोड़ा देर रुक जाओ, है ना? क्लास के बाद फैकल्टी से मिल लो. इसलिए 1-to-1 डाउट है, अवेलेबल है. ओके, बट ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया था क्लास. आ जाओ, पूछ लो, ठीक है? 1-to-1 डाउट क्लियर कर लो, या तो क्लास से पहले आ जाओ या क्लास के बाद आ जाओ. नाउ अरिथमेटिक नोटेशन जल्दी से खत्म कर देते, राइट? हाँ, जल्दी हो जाएगा ना, उसमें कुछ है ही नहीं. हाँ, क्वेश्चन है, राइट? तो बात करना है कि नहीं बात करना है? तो असाइनमेंट्स है तो आप देख लेना, फिर कल विल डिस्कस दैट. अच्छा, हेरॉन्स फॉर्मूला कितने लोग जानते हैं? गुड, सब लोग जानते हैं? प्रूफ कर सकते हैं? करा दिया? ओके ओके ओके. तो हेरॉन्स फॉर्मूला का कंटेंट क्या है आप लोग को? So you can practice the questions. Okay. अच्छा, let's tell me this question. AP सबने अच्छे से पढ़ लिया? कोई ऐसा बच्चा जो AP एकदम नहीं जानता है? 7. आपके पास कंटेंट है, आप लोग पढ़ के आइएगा, उसके सारे रिजल्ट्स पढ़ के आइएगा. We'll discuss tomorrow. Okay? I'll just जो आते हैं जिनको, they will just tell me. Let's say there are 21 terms. कितने terms हैं? 21. And the middle term, 21 terms of an AP, right? And middle term of this AP is 5. What would be the sum of this AP?
What would be the sum of? Now the question is complete. There is no data deficiency in this question. Anyone can answer me? There are 21 terms of an AP, and the middle term of this AP is 5. What is the sum of this AP? कोई नहीं बता पा रहा है. It's very easy question. हाँ? Anyone came up with the answer? नहीं मुनार? नहीं? हाँ मतलब ऐसा कुछ है. सारे नंबर्स लिखे हैं. बीच में 5 है. ये सारे नंबर्स. और 21 टर्म्स है. क्या a into n minus 1 Sir, SN and where do we need to nobody is coming with answer. बोलो. आप मिडिल टर्म का नंबर बता दीजिए. n मिडिल टर्म सब निकल गया. हो गया. तो मोड का मीडियम का मीडियम में ऐसे होता है. तुम लोगों ने बेवकूफों ने सिर्फ एपी को रट लिया, ध्यान कभी नहीं दिया. मीडियम का ओके लेट्स डू एपी. किसी को नहीं आता है फॉर्मूला रट के. हाँ क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, डाल दो, आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. देखो देर सीक्वेंस का मतलब समझो. तुम लाइव बाहर जाके देखो, क्लास में देखो, मेरी शर्ट को देखो, अपने शर्ट को देखो, आसपास के शर्ट को देखो, शॉपिंग भी करने जाते हो, यू सी पैटर्न्स एवरीवेयर राइट. हर चीज का पैटर्न है. किसी की स्टूपिडिटी का भी पैटर्न दिखता है क्लास में, है ना, कि ये कहना है हमेशा एक गलती करना है. तो पैटर्न्स बहुत सारे हैं. और हम लोग जैसे तुम नंबर्स को नंबर से कनेक्ट करते हो तो पैटर्न इमर्ज कर रहा था, जैसे ग्राफ में देख रहा था राइट. ट्रीज को देखते हो तो यू सी पैटर्न्स, क्लाउड्स को देखते हो तो यू सी पैटर्न. तो बेसिकली नंबर को जब नंबर से कनेक्ट करते हो यू सी अ पैटर्न. उसी तरीके से सीरीज ऑफ नंबर्स में भी एक पैटर्न होता है. अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 you know what is happening. This is the pattern of natural numbers. When I say 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 क्या मैं बोल रहा हूँ? Prime numbers. So you can predict the further numbers. 1 1 2 3 5 8 30 21 34 55 89 ये क्या है? Fibonacci numbers, right? So ये पैटर्न्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं. उसी पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसका क्या है कि भाई वो स्टार्ट करता है एक नंबर से a, इट कैन बी एनी नंबर, और फिर कांस्टेंट डिफरेंस के साथ बढ़ने लगता है. a plus d, a plus 2d, a plus 3d ऐसे बढ़ता रहता है राइट. आप इस पैटर्न को क्या कहते हैं? AP राइट. इस पैटर्न को जब आप रेसिप्रोकल ले लेते हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इसे क्या कहते हो? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. जो अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन एपी आता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत आराम से हैंडल कर लोगे. ये ए है. तुम किसी नंबर पे, किसी भी नंबर मान लो k इज एनी पॉजिटिव नंबर, उसमें पावर लगाओ a plus d GP. दिस इज कॉल्ड g. तो आप अभी तीन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना सीखे राइट. कि एपी को रिकॉग्नाइज करने का सिंपल है कि ओके फाइन द डिफरेंस ऑफ द टर्म्स शुड टर्न आउट टू बी अ कांस्टेंट डिफरेंस राइट.
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. So 2 is the difference. So basically the difference is constant. So we can say it's an AP. 1/3, 1/5, 1/7, 1/9. Basically we know that reciprocal has a constant difference. So basically that is a harmonic rotation. If I say 2 to the power 3 into 2 to the power 3, 2 to the power 5, 2 to the power 7, 2 to the power 9, मतलब 2 to the power 2 हर बार multiply हो रहा है. So you have a common ratio. All the powers are in AP. This is the way you recognize. ऐसे करके infinite patterns हैं, infinite तरीके से हर चीज़ों को recognize करना possible है. तो कुछ लोगों को पहचानते हैं, तो कुछ लोगों को जिसको पहचानते हैं उससे ज़्यादा अच्छी जान पहचान बनाते हैं. ठीक है, अब देखो क्या होता है. Let's say a plus t, a plus 2t, a plus 3t. ऐसे करते जाओ. This is your first term, this is your second term, this is your third term, this is your fourth term, fifth term, sixth term, seventh term, 100th term, nth term. So understood. Nth term of an AP is a plus n minus 1. Okay, clear? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now observe this. How many terms are here? 7. First और 7 को add करो. First and last term को add करो. क्या है? 2a plus a plus b. 60. Second and second last को add करो. 2a plus 60. 2a plus 60. a plus 3t को डबल करो. 2a plus 60. समझ में आया? सब लोग एक ही सम बना रहे हैं. कितना सम बना रहे हैं? 2a plus 60. कितने बनने हैं? 7. पेयर कितने हैं? 2. 7 by 2. ऐसे. What is this? Middle term. Understood or not understood? So फिर जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें तो एक ही चलो ठीक है. ये तो मिडल टर्म देगा. 2a plus 60 by 2 लिख सकते हो. समझा? So I can safely say एक तो Sn is equal to n by 2 into 2a plus ये पढ़ते हो ना, या n by 2 into a plus l, where l is the last term. You can also say n by 2 into second plus second last term. You can also say n by 2 third plus third last term. So idea is they should always add to n plus 1. They should always add to n plus 1. जो terms ले रहे हो ना, जो terms ले रहे हो. Then अगर मैं तुम्हें बोलूं there are 81 terms. There are 81 terms and 37th term is 5 and 45th term is 10. Tell me the sum. तो क्या करोगे? So do you n by 2. No need to calculate. No need to. Why? क्योंकि 81 टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म प्लस 80 टर्म्स वुड बी 82. सेम आएगा 2 प्लस 80, 3 प्लस 79, 4 प्लस 78. सो फॉर 37 पार्टनर का होगा, 37 का पार्टनर कौन होगा? 45. तो दोनों पार्टनर दे दिया है. अब बेवकूफ लोग क्या करेंगे? a plus 36t is equal to 5. a plus 44t is equal to 10. b निकालेंगे, n निकालेंगे and solve करेंगे. Understand? Smart answer और formula based answer में कितना फर्क होता है?
ठीक है। अच्छा, तो आपको ये पता चल गया कि हाउ टू हैंडल सम, है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा रहेगा कि ये 81 है, ये 30 है, ये तब कुछ नहीं कर सकते हो, तब तो कुछ नहीं कर सकते। क्लियर, कहानी खराब है। या तुम 75 टर्न्स तक निकाल सकते हो, 74 टर्न्स तक निकाल सकते हो, फिर नेक्स्ट 7 का प्रेडिक्ट कर सकते हो। देन आल्सो यू कैन प्ले स्मार्टली, अगर गंदा सा कैलकुलेशन हो रहा है तो, है ना। इट्स ऑलवेज ऑन योर पिक एंड चूज थिंग। जैसे तुम्हें मैंने स्क्वायर्स करना परफेक्ट बता दिया है, उसी तरीके से तुम मल्टीप्लाई करना खुद से सोच सीख सकते हो। If I say 48 into 52, what does it mean? 50 minus 2 into 50. It means nothing but 2496. क्या किया मैंने 50 का स्क्वायर कर दिया, उसमें से 4 हटा दिया, क्योंकि मुझे पता है 48 और 52 के बीच प्यारा सा बंदा है 50, वही तो पीछे बैठा हुआ है। तुमने पूछा 107 into 111, मैंने बोला 1188, क्या था 107 into 111 11877। तुमने बोला 104 into 109, मैंने बोला 11336। फिर बेसिकली ये भी निकाल लेगा ये आंसर, ये भी निकाल लेगा ये आंसर, लेकिन स्मार्ट आंसर ऐसे निकलता है जब तुम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, राइट। सो दिस इज द वे। अभी एपी में जब स्टार्ट किया तो खत्म ही कर देते हैं। तो आपको सम ऑफ n टर्म बताना आ गया, सम ऑफ n टर्म बताना आ गया। आपने ये भी सीखा कि Sn इज एक्चुअली t मिडिल इनटू n, है ना। लेकिन t मिडिल कब एग्जिस्ट करता है? जब टोटल नंबर्स ऑड हो। जैसे 81 टर्म्स हो तो 40 इधर 40 इधर, मैं हो गया 41st, आई एम द मिडिल फिगर। लेकिन अगर 80 टर्म्स है तो 40 इधर 40 इधर, still I am the middle term, but I am which term? 40.5 term, which is not a part of AP, but still I am the median, I am the mean. तो सभी भी सम क्या होगा? 40.5 term into 80। लेकिन अब मुझे तुम 40.5 term लिख नहीं सकते हो, but you can smartly say that the sum is going to be the average of first and last, and which is nothing but A plus 39.5T. And if I am 40.5, what am I? A plus 39.5T, but I am not a part of C. Don't say that I am a part of C. ना 40 से 40 clear. So middle term is nothing but T, sum of n terms is nothing but T middle into, देखो तो इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, एक एग्जांपल से देखिए। Should I got this? भाई अगर इसका एक ही नहीं खत्म हुआ तो हो गया, है ना, खत्म हो गया ना, इतना ही तो जानते थे आप। देखो अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि Sn over S dash n, Sn over S dash n is 3n plus 4 over 7n plus 5। मैंने एक इक्वेशन दे दिया Sn over S dash, मतलब दो AP है, ये अलग AP है, ये अलग AP है, लेकिन दोनों का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सेकंड AP इज इक्वल टू 3n plus 4 अपॉन 7n plus 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? आपको बताना है T17 अपॉन T-17। हाउ टू गो फॉर इट? So you want to write n by 2 into 2n, तो बर्बाद, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, हालत खराब, राइट। तो क्या करना चाहिए? ये इस पे ध्यान देना चाहिए। 17 is the middle term। अगर 17 middle term है तो कितने बनते हैं? 16 इधर 16 इधर, so the total terms कितने हो गए? 33। If I am 17, 16 has to be here. 16 has to be here, then only I am 17, right? So I am the 17th fellow and I am the middle term. तो total terms कितने हैं? 33. So I can say T17, मैं दोनों तरफ 33 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, कोई फर्क तो नहीं है। So I can say this is nothing but, so I can say
इट मल्टीप्लिकेशन है क्या मतलब समझना आंसर आ गया मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे अरे देखो मुझे ये पता है ना S50 अपॉन S50 क्या होगा 3 × 50 + 4 अपॉन 70 + 5 यही होगा यहाँ पे जो भी डालोगे यहाँ डालोगे आ जाएगा तुम्हें T17 अपॉन T-17 बताना है तुम्हें वो नहीं पता है लेकिन S33 अपॉन S-33 तो पता है ना जस्ट हैव टू पुट 33 and 3 × 33 + 4 7 × 33 + 5 ओके आंसर आ गया समझा ओके एक जस्ट लास्ट थिंग इन एपी दिस आपको पता है लेट्स से T30 is let's say 25 and T40 is let's say 45. What is B? What is the difference? Tm minus Tn is equal to m minus n. ये होता है ना अग्री करते हो सब Tm minus Tn is m minus n into d क्यों देख लो a plus m minus 1d minus a plus n minus 1d ये कट गया d कॉमन है m minus 1 minus n plus 1 क्या बचा m minus n into d clear so you can say 45 minus 25 over 40 minus 10 ठीक है clear अच्छा if I say Tm minus Tn is m minus n into d so Tm plus Tn is equal to ये ठीक है आगे सो ठीक है आपको अभी असाइनमेंट जो मिले हैं आप घर पे जाके करना नेक्स्ट क्लास में अगर कोई सर्कल से में डाउट है या इसमें डाउट्स है यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और कुछ नई टॉपिक्स में विल टॉक अबाउट द ट्रायंगल्स इन नेक्स्ट क्लास ओके टुमारो वुड बी सम मैथ्स लास्ट मैथ्स क्लास सैटरडे इसके बाद कल फ्राइडे ना तो सैटरडे आई वोंट बी देयर सो टुमारो इज द लास्ट मैथ्स क्लास ओके और सैटरडे को आपकी बायोलॉजी क्लास हो जाएगी जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है और एनीथिंग any doubt regarding last class this class or anything away from this class no कोई भी mathematical doubts नहीं है okay then ठीक है so just chemistry class will start in few minutes thank you
पेपर देख के लगा रहा है कि रोज स्पेंड हो गए जाओ मुझे भी दे दो मुझे याद नहीं है बहुत ही याद है ले वाईफाई ले आ गया फोटो भी Good evening, all of you. आज क्लास में IUPAC कम्युनिकेशन कर रहे थे ना, साइकिल और जेक्स कर रहे थे ना, दो बंदे बोलिए क्या कौन सा जो टाइप का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ठीक है इसके बाद दे देंगे ठीक है ये मोड है ना हम लिंक स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने का राउंड है 4